So, join the viewers. Welcome to our channel. We will discuss the class 7th NCERT history. That is the tracing changes through 1,000 years. We have already uploaded part 1. You can search the playlist and get the data. Now we will discuss part 2. That is new and old terminologies and further terms. To read, first paragraph. If the if the context in which information is produced changes with time, what about terms and the meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meanings of words also change over time. So what? Uh, so according to time, what information was changed? Previously, what was the information, and now what is the information? Suppose previously, suppose you used to write in what leaves in palm leaves, but now we write on pen and paper. So this is the information we collect. And what we used to language, maybe at that time we use Sanskrit, whatever that language. But now we use local languages also. We can write and meaning. Accordingly to from the data, we can find out the meaning. Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Historical records exist in a variety of languages. जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है। जैसे आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, और आप जो तमिल है वो भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो जान सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में भी हिस्ट्री अवेलेबल है। जो हम पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री जो है चेंजेस हुआ है 1,000 ईयर से 1,000 ईयर तक जो चेंज हुआ है वो हम रिकॉर्ड से पढ़ सकते हैं। मेडिवल पर्सन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सन। इसका मतलब है जो मेडिवल पर्सन जो अकबर बाबर ये सब थे, पर्शियन रूलर थे, वो पर्शियन थे तो यूरोपियन कंट्री से आए थे। आप जानते हो फ्रांस जाने, फ्रांस फ्रांस में पेरिस है। तो जो लैंग्वेजेस वहाँ बोला जाता है वो इंग्लिश भी बोलते हैं, फिर भी तो पाकिस्तान देन अफगानिस्तान ये सब लैंग्वेज में यहाँ पर फारसी और ये यूज होता है। फारसी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारा उड़िया लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, वैसे ही फारसी एक लैंग्वेज है। तो मॉडर्न पर्शियन डिफरेंट होता है मेडिवल पर्शियन से। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रामर और वोकेबुलरी वो सिंपली वो ही नहीं चेंज हुआ है, ये टाइम के अकॉर्डिंगली मीनिंग भी चेंज होता है। जैसे कि एक सेंटेंस वोकेबुलरी मीन्स उसका मीनिंग है, एक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसे हम बोलते हैं वोकेबुलरी। वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये सब जानना चाहिए थे। तो जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। तो वर्ड का मीनिंग है, जैसे एक सेंटेंस का एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस होता है। एक वर्ड एक सेंटेंस में उसका मीनिंग और एक होगा, और दूसरे सेंटेंस में उसका मीनिंग और एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। वैसे ही हमारा हिस्ट्री भी क्या होता है, चेंज हो सकता है, जो चेंज हुआ है। समझ में आया? इसके मतलब है कि जो वर्ड का मीनिंग है, तो एंशिएंट टाइम में जो वर्ड का मीनिंग जो होता है वो मेडिवल टाइम में उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है। वो चेंज हुआ है, कुछ क्षेत्र में चेंज हुआ है। क्या? ठीक है। Take the term Hindustan. For example, that we understand today. Today we consider this as India.
The modern nation state, when the term is used in the 13th century by Minhaj e Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he means the area of Punjab, Haryana and lands up between the Ganga and Yamuna. He used the term a political sense that lands were part of the dominion of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted to the extent of sultanate, but the term never included to South India. इसका मतलब है जो सुल्तानेट के टाइम में जो हुआ था, जो एरिया था, उसे हम इंडिया बोलते हैं, जो हिंदुस्तान को बोला जाता है, वो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो इलाका है, जो लैंड है, उसे हम बोलते थे इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो हम जब हम भारतवर्ष नहीं कि हिंदुस्तान के बारे में बता रहे थे, तब हम साउथ इंडिया को कंसिडर नहीं कहते, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सब आपके हिंदुस्तान में कंसिडर नहीं होते। तो वो जो है साउथ बाय कंट्रास्ट अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, बाबर जो हिंदुस्तान टर्म को यूज कर रहे थे, वो उनका जो खाना, जो कल्चर जो है, वो सब चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि 16th सेंचुरी में हमारा हिस्ट्री जो इंडिया का मैप, हिंदुस्तान का मैप जो अलग था, और प्रीवियसली हिंदुस्तान का मैप अलग था। 20th सेंचुरी में अलग था और 16th सेंचुरी में अलग था। तो हम देखेंगे 14th सेंचुरी में भी जो अमीर थे, जो एक पोएट थे, वो वर्ड यूज किए थे हिंद। जो the idea of geographical and cultural entity like India did exist, and the term Hindustan did not carry the political and national meaning which you associated with today. हिंदुस्तान हिंद वर्ड था, इसका मतलब है जो पोएट में यूज किए थे, और जो हमारा जैसे इंडिया भी कुछ एग्जिस्ट हो रहा था, जो हम बोलते हैं, आज हम बता रहे हैं हमारा कंट्री का नाम इंडिया है, ये इंडिया भी एग्जिस्ट हो रहा था, मगर जो हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान का मतलब जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो हम अब बता रहे हैं, अब जो हम इंडिया के साथ में जोड़ रहे हैं, जैसे इंडिया आपके मन में आता है, तो इंडिया आता है, तो हमारे मन में ये इंडिया का मैप आपको माइंड में जड़ित हो जाता है, तो एसोसिएट हो जाता है। वो उस वक्त हिंदुस्तान का मीनिंग वो नहीं था, जो अब इंडिया के मीनिंग है। इसका मतलब यह है कि सपोज हिंदुस्तान एक अलग अलग एरिया को लेकर होगा, और इंडिया अब इस जमाने में देख रहे हैं, वो भी कुछ अलग अलग एरिया को लेकर हुआ है। समझ में आया? तक कोई डाउट? ठीक। Historians today have to be very careful about the terms they use because they mean different things in the past. Suppose a foreigner, इसका मतलब foreigner, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंट्री में, इसका मतलब ये होता था कि जो उस रीजन का एरिया का नहीं था, उससे हम बोल रहे थे फॉरेनर उस वक्त। मगर अब हम फॉरेनर किसे बोलते हैं, जो हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं होता है, दूसरे कंट्री से आ रहा है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और कौन सी कंट्री का नाम जानते हो? हाँ, फॉरेन का मतलब ये है कि जो आपके ओन कंट्री का नहीं है, उसे बोलते हैं हम फॉरेन। जो कंट्री है उसे बोलते हैं हम फॉरेनर। हाँ, गांव में बोलते हैं, जो हमारा अलग एरिया से, अलग स्टेट से आएगा, तो उसे हम विदेशी बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। गांव में अभी भी कुछ एरिया में बोलते हैं, क्यों? वो रीजन में वो प्रचलित है। मगर अकॉर्डिंग टू टुडेज डेफिनेशन, foreigner are the people who do not belong to the same country. But in the ancient time, foreigner is the person who who does not belong to the same region. That means we told that the two peasants cultivating in their farm, but they are the localities. But another people who does not belong to their locality is called the foreigner. Let's see. We have already geographical. Geography. What is geography? Geo means add. Graphy means study. Simply आप एड को स्टडी करेंगे, ये क्या है, एड क्या है, इसका क्या है, इसे हम बोलेंगे ज्योग्राफी। एड का पार्ट है, एड को ये जब हम देख रहे हैं, ये जो सब वर्ल्ड है, वो कहाँ पर? एड के ऊपर है। जो दिन रात होता है, मौसम होता है, वो किसके वजह से होता है? एड की वजह से होता है। तो हम ये स्टडी करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे दिनचर्या को प्रभावित करता है। जैसे ज्यादा गर्मी लग रहा था, अब ठंडा लग रहा है, अब बारिश हो रहा है, क्यों? ये भी ज्योग्राफी
से वाई, इसका मतलब है कि हम पृथ्वी को स्टडी कर रहे हैं क्या क्लाइमेट। समझ में आया? ठीक। हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेस। Historians use different type of sources to learn about the past depending on the period of their study and the nature of investigation. इसका मतलब है कि वो कब स्टडी कर रहे हैं और वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या कैसे वो अपनी रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड इसका मतलब है कि प्रीवियसली कौन कौन से क्या क्या इनोवेशन है, क्या इन्वेंशन है, ये सब कुछ डाटा निकालना, इसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, ये नहीं। इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब जो रिकॉर्ड है वो पूछताछ करेंगे, वो ज्यादा हिस्ट्री तक तो उससे कुछ डाटा लेंगे। Last year, for example, we have read about ruler of Gupta dynasty and Harshavardhana. Harsha means happiness. Harsha means जो इंस्क्रिप्शन लिखा था वो इंस्क्रिप्शन शायद अहिहोल इंस्क्रिप्शन था, शायद मुझे याद नहीं, मगर वो जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था हर्षवर्धन, ठीक है, ठीक है। तो वो जो उनका जो किंगडम का जो रेन पीरियड है वो अहिहोल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, शायद मुझे तो ठीक याद नहीं आ रहा। ठीक है। इन दिस बुक वी रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर। अब इस बुक में हम पढ़ेंगे 700 से लेके 1750 ईयर तक हम पढ़ेंगे। अब प्रीवियसली आप जो पढ़े थे वो था एंशिएंट, अब जो हम पढ़ेंगे मेडिवियल, ये हिस्ट्री। We'll notice some sources used by historian for study of period. आप देखोगे कि जो हिस्ट्रियन थे वो स्टडी कर रहे थे इस पीरियड के टाइम। They still rely on coins. Rely means आप वो प्रचलित करना, आप यूज कर रहे थे, वो कुछ कॉइन भी यूज कर रहे थे। इंस्क्रिप्शन मीन्स जो पत्थर में खोदित होकर कुछ लिखा होता है, उसे बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। आर्किटेक्चर ये है कि जो टेम्पल हम देख रहे हैं और कुछ मस्जिद देख रहे हैं, ये सब क्या है? आर्किटेक्चर। वो कौन सा स्टाइल में लिखा हुआ है, सॉरी कौन सा स्टाइल में बना हुआ है, ये सब आर्किटेक्चर बातें आती है। जो भी स्ट्रक्चर जो है एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, जो कुछ बुक है, कुछ पाम लिप में कुछ लिखा हुआ है, ये सब आप कलेक्ट करके सब डाटा निकालते इंफॉर्मेशन के लिए। बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, बट कुछ डिसकंटिन्यूटी भी थे। इसका मतलब है कि वो जो प्रीवियसली थे वो कंटिन्यू कर करके हिस्ट्री को लेकर आ रहे थे, और कुछ देर इज सम डिसकंटिन्यूटी ऑल्सो, कुछ कंटिन्यूटी नहीं रही। जैसे कि नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड था वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली, इसका मतलब बहुत ज्यादा, इन ए रैपिड मैनर जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो अपने जो जब वो खोज रहे थे वो ही लिखा थे, और जो ढूंढ रहे थे वो ही लिख लेते, जो प्रीवियसली क्या है वो कुछ डाटा कलेक्शन नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि क्या प्रीवियसली डाटा अगर इस बुक में नहीं है तो देर इज डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, आप सपोज हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, आप स्कूल गए होगे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन गए हो, और गुरुवार और शुक्रवार को आप छुट्टी कर दी और फिर से शनिवार को गए हैं, तो गुरु और शुक्र 2 दिन नहीं गए तो आप बोल सकते हैं कि हम आपने डिसकंटिन्यू किया था 2 दिन के लिए, कंटिन्यूटी नहीं था। ऐसे ही जो हिस्ट्री था, हिस्ट्रियन क्या कर रहे थे, जो अपने अपने जो खोज कर ला रहे थे, जो सोर्स जो ढूंढ रहे थे वो ही लिख रहे थे। तो प्रीवियसली क्या हुआ था, एंशिएंट में क्या हुआ था, वो ज्यादातर अनुसंधान नहीं करते थे और कुछ अपने बुक में और कुछ लिखते नहीं थे। इसलिए जो हिस्ट्री है वो उस पीरियड तक डिसकंटिन्यू रहा है, क्योंकि उस पीरियड सपोज एक पीरियड से सपोज 100 साल है और 200 साल है, 100 साल तक हिस्ट्री को लिखा गया, वो सब कुछ क्या हुआ था वो सब कुछ लिखा गया, मगर जो 100 से 200 साल तक कुछ भी नहीं लिखा गया, फिर से 200 से 300 तक लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि 100 से 200 तक डिसकंटिन्यू हुई। पिल्लो लाऊं? सो जाओगे, नींद आ रहा है ना तुम्हें? और तुम दोनों की बातचीत खत्म हुई? अंकिता, और तुम्हारा नाम क्या है? शुभश्री।
तो अंकिता और शुभश्री, तुम्हारा बातचीत खत्म हुई? गौतम, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव. Through this period, paper gradually becomes cheaper and more widely available. इस पीरियड में क्या हुआ था? पेपर बहुत सस्ता हो चुका था, इसलिए लोग पेपर में लिखना आरंभ किए. ज्यादा तक यूज हुए पेपर. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, जो पवित्र ग्रंथ है जैसे रामायण, भागवत गीता, ये सब होली टेक्स्ट को राइट करने के लिए. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स का मतलब है कि जैसे कि बाबर आया था, फिर आया था जहांगीर. सपोज बाबर, जहांगीर, फिर आए थे अकबर, अकबर के बाद कौन से आए थे? शाहजहां. उसके बाद आए थे, नो नो, क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल है. जैसे क्रॉनिकल होता है वैसे ही, जैसे राम है, ऐसे दशरथ है, दशरथ के बाद कौन आए? राम आए, राम के बाद कौन आए? लव कुश आए. ये जो क्रॉनिकल है, कौन के बाद किस कौन आता है, इसे हम बोलते हैं क्रॉनिकल. तो जो क्रॉनिकल पीपल यूज्ड टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स. पिटिशंस, सेंट मीन्स जो साधु संत होते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट. तो जो उनके टीचिंग है वो भी हम पेपर में लिखने लगे. और पिटिशंस, पिटिशंस मीन्स आपका जो आप कुछ अभियोग करोगे कि ये मुझे नहीं मिला, आप कुछ अभियोग करोगे, वो भी अभियोग लिखा गया. और जुडिशियल रिकॉर्ड, जुडिशियली में जो वहां पर भी जुडिशियली होगा, कोर्ट होगा, तो वहां पर भी कुछ रिकॉर्ड लिखा गया था. रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पेपर यूज किया गया था. जुडिशियली मीन्स जुडिशियली, कोर्ट. एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, और अकाउंट और टैक्सेस, कितने टैक्सेस कलेक्ट हुए इस साल में, कितने अकाउंट में कितने पैसा है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट में इतने पैसा है, ये सब कुछ डाटा कलेक्ट करके, ये सब डाटा कुछ कहाँ पर लिखा गया था? पेपर में लिखा गया था. क्यों पेपर में लिखा गया? क्योंकि पेपर उस वक्त चिपर और चिपर हो चुका, बहुत सस्ता हो चुका था, इसलिए. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers and monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. Manuscript क्या है? जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है, जो हाथ में लिखा गया था, हैंड राइटिंग नोट, हैंड रिटन नोट जो है, ये तो सब लिखा गया है. मगर इस लिखने को क्या करेंगे? आप स्टोर करके रखोगे, इस लिखने को हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट. जैसे हाँ, तो पत्थर में सुनो, दो कॉन्सेप्ट है, एक है इंस्क्रिप्शन, एक है मैन्युस्क्रिप्ट. जो पत्थर में लिखा होता है उसे पत्थर में लिखा होता है उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन. मगर जो पाम लिप में और पेपर में कुछ खास लिखाई होती है वो उसे बोलेंगे हम मैन्युस्क्रिप्ट. समझ में आया? मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन. देखो, इंस्क्रिप्शन बहुत देर तक मैंने सॉरी प्रिजर्व हो सकता है. वो स्टोन पे के ऊपर है तो बहुत ज्यादा स्टोन में बहुत टाइम लगा होगा, इसलिए बहुत टाइम रहा है. सुनो, जैसे लिखने के लिए बहुत टाइम लगता था, इसलिए वो बहुत दिनों तक रहेगा. सिंपली जो जल्दी लिखे वो जल्दी ज्यादा देर तक जल्दी मिट जाएगा. मैन्युस्क्रिप्ट आर कलेक्टेड बाय wealthy people, ruler and monasteries and temples. जो मोनेस्टरी इसका मतलब है जो बौद्ध लोग, गौतम बुद्ध का जो शरण जाते थे, तो वो क्या जो जहाँ पर रहते थे, जो बुद्धिस्ट साइंस है, वो जो बुद्धिस्ट साइंस जहाँ रहते थे उसे हम बोलते थे मोनेस्टरीज. समझ में आया? जैसे हिंदू लोग कहाँ रहते, जैसे हिंदू साइंस रहेंगे मंदिर में, वैसे ही बुद्धिस्ट साइंस कहाँ रहते थे? मोनेस्टरीज में रहते. तो जैसे आप गए होंगे धौलीगिरी, वहां पर बुद्ध का एक स्टेचू है. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स. तो आप अब हम देखेंगे आर्चिव क्या है. आर्चिव ये है कि ए प्लेस वेयर documents are manuscripts are stored. Today, all national and state government have archives where they keep all their old official record and transactions. इसका मतलब है कि जो आप जैसे एक लाइब्रेरी के जैसे आप एक सब कुछ वहां पर स्टोर करके रखिए, उसे हम बोलेंगे आर्चिव. आप जब भी आर्चिव में जाओगे तो आपको डाटा भी, आपको कुछ पुराने रिकॉर्ड भी मिल जाएगा. क्या हुआ लाइब्रेरी? आर्चिव आप बोल सकते हो कि एक तरीके
आर्चिव। तो आर्चिव को बोल सकते हो कि एक तरह की लाइब्रेरी जैसा है। तो वहां पर है, जब जो भी कुछ रिकॉर्ड आपको खोजना होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी का सिंपली आपको मैंने एग्जांपल दिया कि लाइब्रेरी में जैसे आप लाइब्रेरी टाइप, जैसे आप लाइब्रेरी में अगर कुछ बुक हो, आप अगर जाओगे लाइब्रेरी तो आप प्राय जो बुक खोजोगे वो ढूंढोगे वो आप निकाल सकते हो, इजीली आप पा सकते हो। वैसे ही आपका जो आर्चिव में क्या होता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो है, आप इजीली रिकॉर्ड को आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, there was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। इसका मतलब है कि जो प्रिंटिंग प्रेस आजकल क्या करते हो, आप कंप्यूटर में सिर्फ टाइप कर देते हो, उसके बाद प्रिंट करते हो, उसके बाद जेरॉक्स भी कॉपी आपको 10 आपको 20 कॉपी चाहिए तो आप सिंपली कॉपी कर लेते हो जेरॉक्स मशीन से। अब क्या होता था, उस वक्त कोई मशीन नहीं था, जेरॉक्स मशीन नहीं था, प्रिंटर मशीन नहीं था, तो कैसे उसे स्टोर करके लिखा जाए। अगर 2-3 कॉपी चाहिए तो क्या करेंगे, तो क्या करते थे, जो स्क्राइब होते, स्क्राइब इसका मतलब है जो लिखने के लिए सिंपली रखा जाता है, सिंपली लिखने के लिए देख के लिखना है, कॉपी करना है। आप जैसे हैंडराइटिंग इसका हैंडराइटिंग कॉपी करना है, उसके बाद कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हाथ पर लिखा हुआ था उसे सिंपली देख के कॉपी करके अपनी खाता में उतारे लिखते। हाँ, ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्या कर रहा है, वो एक कॉपी से सिंपली देख कर यहाँ पर लिख रहा है। इंक का पेन था, एक पेन होता था, बॉल पेन होता था, आपको या इंक में पूरा डुबाना था, उसे डुबा कर ठीक है। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क सिंपली, आप तो ये जो स्क्राइब का काम बहुत अच्छे से करते हो। कैसे, जब स्कूल में होमवर्क दिया जाता है तो क्या करते हैं, अपने एक फ्रेंड के कॉपी के अपने एक फ्रेंड में और कुछ नोट गाइड्स में क्या करते हैं, और गूगल में। अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, तो गूगल से सर्च करो, फिर देख के फोन से उतारो अपने खाता में। Sometimes you cannot read your friends handwriting or forced to guess what is written। तो आप ये भी कर सकते हो, तो गूगल में तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, अगर आप फ्रेंड से नोट ले होगे तो फ्रेंड में कुछ जो हैंडराइटिंग है वो नहीं दिखाई, आप समझ नहीं पाओगे, तो आप क्या करते हो, अपने वे में वो वर्ड को एडजस्ट करते हो। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि तो आप जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब है कि जैसे एक आपका फ्रेंड में लिखा एंड एंट, मगर वो जल्दी में लिखला एंट, बट आपको दिखाई दिला एनएल, तो आप समझ में अनिल हुआ होगा कोई वर्ड, चलो देख के लिखते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समव्हाट सिमिलर। तो इसका मतलब ये है कि तो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी, जो मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं वो सिमिलर होता है। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। मगर जो मैन्युस्क्रिप्ट को जो स्क्राइब लिख रहे थे वो कुछ वर्ड चेंज कर रहे थे, क्योंकि जो वर्ड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो अपने तरीके में वो वर्ड को एडजस्ट कर रहे थे, इसलिए चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो मे बी तो वर्ड में चेंजेस हो सकता है, सेंटेंस में चेंज हो, सब कुछ का क्यों गलत होता है, कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस गलत हो सकता है, वो एडजस्ट कर रहे थे अपने तरीके, इसलिए these small differences grow over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another। इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों तक ये जो कॉपी करने के लिए बहुत दिनों तक चला रहा। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today। इसीलिए एक प्रॉब्लम है कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था अब हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो पा रहे हैं फिर भी हमें ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो ओरिजिनल में क्या लिखे थे, जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखे थे, जो रामायण लिखे थे वाल्मीकि ने, उस ओरिजिनल रामायण को, उस जो लिखन को हम पाने के लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो सकता है। We are totally dependent upon the copies made by later scribes। तो हम क्या करते हैं, जो स्क्राइब थे जो कॉपी करके लिख रहे थे उन पर हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। As a result, historians have produced different manuscript version of the same text।
तो वो क्या कर रहे थे, जो हिस्ट्रियन है वो कैसे जानेंगे, जो 2-3 स्क्राइब के एक एक राइटिंग को 2-3 लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने नोट में लिखेंगे, तो 2-3 लोगों जो 2-3 स्क्राइब के जो लिखन को वो हिस्ट्रियन स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद वो to what the author had originally written. On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicler first in by 1356 and another version 2 years later. इसका मतलब है कि जो उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, रिवाइज भी कर रहे थे, जो ऑथर लिख रहे थे वो क्रोनिकल के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो स्क्राइब को जो 2-3 स्टेप को पढ़ेंगे और उसे अनुध्यान करेंगे, उसके बाद उन्हें चेंजेस भी लगेगा। इसीलिए जैसे कि जियाउद्दीन बरहानी थे, वो फर्स्ट क्रोनिकलर जो थे वो 1356 में लिखे, फिर उसके बाद 2 years later में लिखे। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1960. जो दो क्रोनिकल वो लिखे थे वो डिफरेंस है, there was difference in between the two. But 1960s, but the historian cannot find what was the difference till 1960. It remained lost in the large library collection. जो library collection में भी वो lost हो चुका था, जो fast जो उनका fast chronicle था। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप क्या है, वो कैसे इमर्ज हो चुके हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सुप्रभात। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।